Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8 History chapter 1st How, Where and When part 2 How do we periodize? हम अवधियां कैसे तय करते हैं अर्थात किस प्रकार हम हिस्ट्री को अर्थात इतिहास को कालखंडों में डिवाइड करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। In this, he divided Indian history into 3 periods: Hindu, Muslim and British. अपनी इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था। This periodization came to be widely accepted. और इस प्रकार के काल विभाजन को ज़्यादातर लोगों ने स्वीकृत भी कर लिया था, मान भी लिया था। Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? Why do we try and divide history into different periods? हम इतिहास को अलग-अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. दरअसल इसकी भी एक वजह है। ऐसा करके हम उस दौर की कुछ केंद्रीय विशेषताओं को पकड़ने की कोशिश करते हैं। So, the terms through which we periodize, that is democrat, the difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। Mill thought that all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe. मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे हैं। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। Religious intolerance, caste taboos and superstitious practices dominated social life. यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। Mill felt, could civilized India to do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, लेकिन इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। Mill in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress
without British help. मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। The period before British rule was one of darkness. और अंग्रेज शासन के पहले का सारा युग अंधकार का युग था। Can such a conception be accepted today? क्या इस प्रकार की धारणा को वर्तमान में स्वीकार किया जा सकता है? In any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an as only through the religion of the rulers of the time? इन सारे दौर में, इन सारे युगों में कई तरह के धर्म एक साथ क्या नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? To do so, it is to suggest that the lives and practices of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि उस समय औरों के यानी आम जनजीवन के तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं था। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंडों में बांटा है। This division to have its problem. इस प्रकार के काल विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, and equality. इस प्रकार इतिहास को कालखंडों में बांटने की यह परंपरा भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. क्या हम अपने अध्ययन के लिए
आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। Many historians therefore refer to this period as colonial. इसी कारण बहुत सारे इतिहासकारों ने इस युग को औपनिवेशिक युग कहा है। What is colonial? औपनिवेशिक क्या होता है? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं का दमन करके अपना शासन स्थापित किया। You will see how they established control over the economy and society. आप ये भी देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। Collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों में क्या बदलाव आए? You will also came to know about the changes British rule brought about in values and taste, custom and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत अर्थात कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे कॉलोनियल वर्ड जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। दरअसल किसी भी देश का उपनिवेश तब कहते हैं जब एक देश दूसरे देश पर अधिकार कर वहाँ के संसाधनों का यूज अपने देश के फायदे के लिए करता है, साथ ही उस अधीनस्थ देश के कल्चर, कस्टम्स या अन्य चीज़ों में अपने फायदे के लिए बदलाव करता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। हाउ डू वी नो? हम इतिहास को किस तरह जानते हैं, इसके विषय में हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ टुडेज क्वेश्चन। आज का प्रश्न आपको बताना है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर
आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।